Hello everyone, myself Onish Gaur from Elcom Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and now we are going to discuss about the next asexual mode of reproduction. The next that is the budding. The next or second asexual mode of reproduction we are going to discuss it is the budding. And budding process involves the formation of a small outgrowth or creation or origin of a small outgrowth from the body parts, and that small outgrowth becomes either becomes mature, okay, and then becomes detached from the parent body and survive independently as new individual. So budding takes place in two kinds of organism. First, in unicellular. Budding can also take place in unicellular organism as well as multicellular. तो पहले हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं. So in unicellular organism, it is found in, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे yeast में. In unicellular organism, yeast is the example of budding. Means yeast multiply their number or their population by the process of the budding. Okay, and in this process, in the body of yeast is a unicellular fungus. yeast जो होता है ये unicellular fungus होता है, and when it is found in nutrient medium, जब ये nutrient किसी भी nutrient medium में पाया जाता है, then it multiply rapidly. Okay, especially in the case of the nutrient medium having a rich amount of carbohydrate. ऐसे nutrient medium जिसमें carbohydrate ज़्यादा amount में पाया जाता है, like a process you have already studied about fermentation. Fermentation एक process होता है जो कि specially yeast से ही होता है. उसके अलावा जो है बैक्टीरिया भी fermentation करते हैं, but yeast is the most common organism for fermentation process. So when yeast apply or put in a medium having carbohydrate source or sugar, so in that medium the yeast multiply in very fast mode, okay, rapid way में multiply करता है, and the mode of multiplication it is the budding, okay, and in budding process in yeast it make a chain of bud is formed from the parent yeast body. Okay, parent yeast body से जो है एक chain of bud create होता है, and then this when the chain of bud becomes mature, they becomes detached from the parent body. एक करके जो है detach होते चले जाते हैं, and they become survive independent life. detach होने के बाद जो है independent life survive करते हैं. Second जो budding होता है is in multicellular organism. And in multicellular organism, you can easily observe the process of budding in Hydra. Hydra is the most common example which show the budding process along with Hydra. You can also observe the budding in sponges. Most of the sponges also perform budding to reproduce asexually. Asexual mode of reproduction जो है इनमें budding के थ्रू भी होता है. So एग्जाम्पल हम हाइड्रा के ले रहे हैं. हाइड्रा में कैसे बडिंग होता है? सो फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द हाइड्रा का जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट मीन्स हाइड्रा की बॉडी में जो है दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, एंड दिस टू पार्ट्स इन्वॉल्व द मेन बॉडी एंड द अपर पार्ट which is responsible to create the mouth. Upper anterior part which is for mouth and tentacle, or special structure in the coelenterate, especially in Hydra, the formation of tentacle, which is actually for the sensitive organ. Okay, and this region is the mouth, and this is the body region. So from the body of Hydra, there is the formation of a small outgrowth. A small outgrowth is formed from the body of Hydra. Hydra की body से एक छोटा सा outgrowth create होता है, and then this outgrowth becomes mature into a tiny Hydra. एक छोटे से Hydra में convert हो जाता है. Okay, and when this tiny Hydra becomes mature, the body parts
this small outgrowth becomes elongate, and they are responsible to form the tentacle. Initial stage of tentacle is formed in the body of hydra, or outgrowth, small outgrowth. Okay, in this small outgrowth or bud, the tentacle formation initiate, and when this tentacle becomes mature, okay, in the body of hydra, when this tentacle becomes mature, when the tentacles becomes mature as the parent body, this small hydra produced from the bud, जो bud से hydra produced हुआ है, this small hydra becomes separate from the parent body. ये parent body से जो है अब separate होगा, detach होगा, and then there will be the formation of new young one, or this is the tentacle, and then the small tiny hydra or baby hydra becomes separate and attached from a substratum. ये जो है मेन पेरेंट बॉडी से जो है सेपरेट हो जाता है यहाँ से डिटैच होने के बाद, एंड आफ्टर डिटैचमेंट दे बिकम्स अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम मींस अ सरफेस, एक सरफेस से जो है ये अटैच्ड हो जाते हैं, एंड आफ्टर अटैचमेंट फ्रॉम द सरफेस they will survive a free independent life. Substratum you have already studied, but in previous class this chapter becomes removed, that is biodiversity. On that place you have अगर ये chapter रहा होता then you will be or you were able to study about the different group of animals, and the first group and second group. First group is Porifera, second group is Coelenterata, and both the group in both the group the organisms are sessile. It means they remain attached to any surface. There is no free life found in their life. इनके लाइफ में जो है फ्री फॉर्म्स जो है नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं बहुत ही स्मॉल स्टेज में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ budding in unicellular as well as in multicellular. Is the fragmentation. Okay, so second it is the fragmentation, or third. The third asexual mode of reproduction is the fragmentation. So as the name or term fragmentation involve a special term fragment, and the fragment means the small piece. Okay, so in this mode of reproduction, a piece of the body, this is asexual mode of reproduction. It means no reproductive organ involved. The main body involved in the process of, or vegetative part of body involved in the process of reproduction. So when the body of organisms becomes break into small pieces, and these small pieces or fragments when grow into new individual, okay, grow into organism, young ones. Okay, तो ऐसे reproduction को हम बोलेंगे fragmentation. Okay, process involve formation of fragments, and each fragment, formation of fragment, and each fragment produce young ones. Produce young one. Okay, जितने भी फ्रैगमेंट बनेंगे इसमें वो सभी फ्रैगमेंट जो है यंग वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेंगे. सेम एज अमीबा. इन अमीबा इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा is split into two piece, and each piece becomes new amoeba. Okay, तो ऐसे यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म, बट ये जो है पाया किसमें जाता है, मल्टी सेलुलर में. सो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. क्योंकि मल्टी सेलुलर में जो है ये सेल डिवाइड नहीं करेगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, और सेल जो आपस में मिलकर के बने होंगे एक स्ट्रक्चर बनाएगा. वो स्ट्रक्चर जो है स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, फ्रैगमेंट्स बनाएगा. ओके, तो ये एग्जांपल आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस यू विल ऑब्जर्व इन स्पाइरोगाइरा.
स्पाइरोगाइरा, ओके। और एल्गी, यह एक एल्गी होता है, मल्टी सेलुलर एल्गी, फिलामेंटस एल्गी होता है, ओके। तो जब इसका फिलामेंट ऑब्जर्व करेंगे तो फिलामेंट जो होता है इसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा, फिलामेंट जो होगा इसका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड इन द फिलामेंट the filament consists of spirally arranged chloroplast, okay। इसके बॉडी में जो है स्पाइरली अरेंज्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड व्हेन द बॉडी ऑफ स्पाइरोगाइरा की बॉडी जो है, जब the body of स्पाइरोगाइरा attain a considerable length, एक considerable length तक जब ये एक्वायर कर लेता है, then it is split into many pieces। यह एक फिलामेंटस एल्गी है जो आप वाटर बॉडीज में, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा ग्रीन कलर के। तो ये जो धागे नुमा ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइरोगाइरा ही होते हैं। पोखरे के पानी में आपको मिल सकता है। तो ये रिप्रोडक्शन जो है फ्रैगमेंटेशन से ही करते हैं। कैसे करेंगे, तो जब इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंसिडरेबल एक्वायर कर लेंगे, देन इट बिकम्स ब्रेक इनटू मेनी पीसेस, ओके। ये बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड ईच पीस हैज एबिलिटी ऑफ टोटिपोटेंसी, ओके। जितने भी पीस बनते हैं वो सभी पीस के पास टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। टोटिपोटेंसी मींस एबिलिटी टू रीजनरेट और एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी पीस बनेंगे वो सभी पीस जो है स्पाइरोगाइरा बनाने में एबल होंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन, ओके। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। द नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फोर्थ वन, इट इज द रीजनरेशन, ओके। Regeneration is the process or ability in many multicellular organism to acquire lost body part। बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी पाई जाती है टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट। जैसे छिपकली के केस में आप देखे होंगे कि छिपकली का जो पूंछ होता है वो अपना पूंछ को सेट कर लेती है इन द व्हेन द ऑर्गेनिज्म अटैक्ड बाय एनी विक्टिम, ओके। अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो ऐसे केस में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो छोड़ देते हैं, अपने पूंछ को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आप लोग देखे होंगे। बट दैट लॉस्ट पार्ट मीन्स वो टेल जो होता है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। उसके अलावा जो है हमारे बॉडी में भी रीजनरेशन प्रोसेस पाई जाती है, रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे लीवर जो होता है हम लोग का, लीवर में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्किन जो होता है, तो स्किन में अगर जैसे देखे होंगे कि आप इंजरी कट लग जाता है, वहाँ का कोई पार्ट जो है रिमूव हो जाता है, तो उसकी जगह पे फिर से जो है स्किन बन जाता है। ऐसा नहीं कि स्किन जो है एक बार कट हो गया, अलग हो गया तो स्किन फिर से नहीं बनेगा, तो स्किन रीजनरेट हो सकता है। तो ऐसे ये जो है रीजनरेशन प्रोसेस इज एबिलिटी टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट। बट इन सम ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन इज आल्सो एक्ट एज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बट नॉट नेचुरली। ये जो है नेचुरल वे में रिप्रोडक्शन नहीं करता है बट एक्सीडेंटली, ओके। इट इज द कंडीशनड रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये एक कंडीशनल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कंडीशनल क्या है, एक्सीडेंटल। मींस रीजनरेशन जो प्रोसेस है एक्सीडेंटली अगर बॉडी डिफरेंट पीस में डिवाइड हो जाती है तो ये सभी पीस, नॉट ऑल द पीस बट मोस्ट ऑफ द पीस ऑफ द बॉडी में ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके। न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है। तो रीजनरेशन आप देखेंगे इसमें एग्जांपल प्लैनेरिया एंड हाइड्रा। प्लैनेरिया एंड हाइड्रा both organisms have ability to make new offspring from their accidentally मेकिंग पीस ऑफ देयर बॉडी। एक्सीडेंटली अगर उनकी बॉडी जो है डिफरेंट पीस में डिवाइड हो जाती है तो ऐसे केस में ये अपने डिवाइडेड पार्ट से नया बॉडी जो है क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स कंप्लीट बॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्मॉल पीस ऑफ बॉडी से भी कंप्लीट पार्ट बना सकते हैं। मीन्स इसमें आप डेफिनेशन देंगे रीजनरेशन, सो मेकिंग ऑफ होल बॉडी from a small piece or small part of body। स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी से भी जो है या स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ बॉडी से
जो होल बॉडी क्रिएट करने की एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और ये जो है प्लेनेरिया में देखा गया इट ऑकर, इसमें एक कंडीशन लगेगा दैट ऑकर एक्सीडेंटली। ओके, इट मीन्स regeneration is similar to fragmentation. In fragmentation also the formation of number of fragments and each fragments grow into new individual or able to make new individual or whole body. और regeneration में भी same process होता है, but in regeneration it is a condition that will occur accidentally, but in Spirogyra the fragmentation process involved in natural way. स्पाइरोगायरा की बॉडी जो हुई एक कंसिडरेबल लेंथ एक्वायर करेगी, कहीं वो फ्रैगमेंट में ब्रेक होगा और ईच फ्रैगमेंट जो है होल स्पाइरोगायरा बनाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये दिखाई दिया दैट इट इज एक्सीडेंटली। ओके, एंड द सेकंड डिफरेंस वी कैन आल्सो स्टडी, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द सेकंड डिफरेंस एज द सपोज दिस इज द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्रेश वाटर. Okay, Planaria is a free-living platyhelminthes, especially or actually the platyhelminthes. Most of the member of platyhelminthes एक ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का। तीसरा ग्रुप जो है पढ़ेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद platyhelminthes आता है। So in platyhelminthes, the most of the organisms found in platyhelminthes or most of the animals in platyhelminthes are parasite in nature. उनका हैबिट जो होता है वो पैरासिटिक हैबिट शो करते हैं, मीन्स किसी ना किसी होस्ट बॉडी में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और मोस्टली डिजीज कॉज करते हैं, बट कुछ ही ऐसे होते हैं उसमें जो फ्री लिविंग लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया विच इज फाउंड इन फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ ये सर्वाइव करता है, ये पैरासाइट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उस ग्रुप में वो सभी पैरासाइट होते हैं। तो ये जो है वाटर बॉडीज में पाया जाता है, फ्रेश वाटर बॉडीज, रनिंग वाटर बॉडीज में। और जब एक्सीडेंटली क्या होगा कि अगर किसी सरफेस से टकराया और इसकी बॉडी जो है कट गई, 2-3 पार्ट पीस बन गया, तो इसका जो पीस बनेगा, सपोज ये जो है बॉडी इसका कट हुआ और पीस बना 3 पार्ट में, एक जो है हेड रीजन बन गया और एक जो है ट्रंक रीजन हो गया और एक क्या हो गया, टेल रीजन हो गया। इसकी बॉडी में 3 रीजन होते हैं, 3 एरिया आप देख सकते हैं। दिस इज द हेड रीजन, this is the trunk region and this is the tail region. Okay, so यहाँ पे जो पीस बना हुआ है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये हेड पार्ट है, ये ट्रंक पार्ट है और टेल पार्ट है। सो और इसमें ये देखा गया है कि ये तीनों ही पार्ट एबल हो सकते हैं, दे आर एबल टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट। मीन्स अगर हेड रीजन से कट हुए तो इससे जो है ट्रंक और टेल रीजन जो है वो हो सकता है। If head region is separated and form in the form due to accidental cutting, अगर ये पीस बनता है हेड रीजन का तो ये ट्रंक और टेल रीजन रीजनरेट कर सकता है। और इस केस में आप क्या देखें कि जो है ट्रंक रीजन कट हुआ है, तो ट्रंक रीजन जो है ये अपने बॉडी से ग्रो कर सकता है। इट हैज एबिलिटी टू ग्रो हेड रीजन एंड टेल रीजन, इसमें हेड और टेल ग्रो कर सकता है। और अगर टेल रीजन है तो टेल रीजन जो है इसके पास एबिलिटी होगी टू मेक ट्रंक रीजन एंड as well as the head region. Okay, in this way you can easily observe that the regeneration in planaria is able to produce whole body. Okay, पूरी बॉडी जो है बनाने में एबल होती है। और यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस आप देखेंगे फ्रॉम फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट होगा, कभी कभी ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। सो द सेकेंड डिफरेंस विल बी दैट इन फ्रैगमेंटेशन ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट्स विल बी एबल टू फॉर्म न्यू स्पाइरोगाइरा। ओके, जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ऑल द फ्रैगमेंट्स विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ
totipotency means ability to produce new individual. But in the case of regeneration, not all the piece will be able to form whole body, but most of the piece will be able to form whole body, because regeneration process take place, it is due to the presence of special regenerating cell in that part. तो अगर ये पीस जो है, इन सभी पीस में जितने भी पीस बनेंगे उसमें से जिस पीस में रीजनरेटिंग सेल, स्पेशल रीजनरेटिंग सेल पाए जाएंगे तभी वो रीजनरेट करेगा. अगर रीजनरेटिंग सेल नहीं पाए जाते हैं तो रीजनरेट नहीं करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द process of regeneration which is found in planaria.